Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session 25 of Tele 9 and ERP 9 SENVET Credit Against Service Tax. Topics to be covered: SENVET Credit Against Service Tax, creating a service tax voucher class in General Voucher, notes on SENVET Credit, payment of arrears, penalties and interest, service tax statutory reports, input credit form, ST3 report. Now in this session of service tax, we were going to understand the SENVET credit against the service tax. सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में कैसे हम लोग SENVET credit को चार्ज करते हैं. To adjust the service tax payment using the excise credit, to adjust the service tax payment against the excise credit, create a voucher class and make an entry in the general voucher using the class. When we say adjusting a SENVET credit against a service tax, उसके लिए that is very simple कि हमें हमारी service tax के adjustments में कुछ changes करने होंगे जहाँ पर हमें excise credits को बताना होगा. In that case, yes, it is required to adjust the service tax payment. अब किस तरीके से हम उस service tax payment को adjust करेंगे? उसकी adjustment के लिए the most important thing is to create a voucher class. हमें voucher class बनानी है. Make an entry in the general voucher also. हमें एक general entry की voucher बनाना है using the classes. So that is what basically comes into the SENVET credit against the service tax. Creating a service tax voucher class in the general voucher, it is the first. अब हम लोगों की जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी? एडजस्टमेंट के लिए हमें एक क्लास बनानी है, राइट, सर्विस टैक्स की. सो हम लोग सेम इसी वाउचर में वो ही कर रहे हैं. नाम है जनरल, नेम रखेंगे इस वाउचर का जनरल, टाइप ऑफ वाउचर इज जनरल, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इज ऑटोमेटिकली. हम साइड पर देख सकते हैं ऑन द राइट, एक्सट्रीम राइट, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ क्लास. अब नेम ऑफ क्लास हम क्या देंगे? सर्विस टैक्स. सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना होता है. नाउ सर्विस टैक्स वाउचर क्लास इन जनरल. अब जैसे ही हमने डाला कि हम लोग सर्विस टैक्स का इसका नाम दे रहे हैं इस क्लास का, तो उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशंस को देना होगा, जैसे कि यूज अ क्लास फॉर द वैट एडजस्टमेंट. नो, बट येस, यूज द क्लास फॉर द सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट. यू हैव टू से येस फॉर दैट. यानी कि आपकी सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट जितनी भी हैं वो इस क्लास के अंदर यूज होंगी. सो यू सेड येस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. देन यू हैव टू कैटेगराइज कि आप किस के लिए इसे यूज कर रहे हैं. तो अब आप जितनी भी जनरल एंट्रीज देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जनरल एंट्रीज शुरू हैं, एंट्री ऑफ अ जनरल वाउचर यूजिंग द वाउचर क्लासेस. सो इसमें सबसे पहले है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में सबसे पहला जनरल जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऑन द वाउचर क्लासेस सर्विस टैक्स. और किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है SENVET क्रेडिट एडजस्टमेंट के लिए. Now this is what the first entry. हमने पहली एंट्री की आउटपुट सर्विस टैक्स एडवर्टाइजिंग की, एक्साइज ऑफ 14%, टू एक्साइज ऑफ 14%, एजुकेशनल टैक्स एंड सेकेंडरी एजुकेशनल टैक्स. हमने पूरी यहाँ पर एंट्री करके दिखा दी. दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग्स और फर्स्ट एंट्री जो कि डू हुई है. Now note on the SENVET credit. Yes, there are certain notes on the SENVET credit. सबसे पहले, to adjust the value of a SENVET credit is displayed under the section 4A1A second of the ST3 report. If we talk about the ST3 report, ST3 report is basically what the statutory report. उसके अंदर हमारी SENVET से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिस्प्ले की जाती हैं. The amount refunded for the non-providing of service for which the service tax was paid on the receipt of such money can be adjusted against the liability of the sequential period of US 63. That is what the amount refunded for non-providing of service. जब हम लोग किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको किसी भी तरीके की रिफंडिंग्स करनी है, तो that refundings would be adjusted on the liability of subsequent period. Another thing is the adjustment entry can be recorded in the general
using the voucher class by selecting the service tax adjustment. This adjustment entry is recorded in the general, वो recorded की जाती है general के अंदर, and the class by selecting the service tax adjustment would be there. Now any amount paid in the excess of liability in any month or a quarter can be adjusted against the subsequent month or a quarter subject to the condition US 64A. that is what, किसी भी तरीके की अगर excess amount है, so in monthly basis और quarterly basis पर आप जो भी adjustment कर रहे हैं, that would be again adjusted on the liability part. This adjustment entry can be recorded in the general using a voucher class by selecting the service tax adjustment. ये जितनी भी adjustments होती हैं वो सारी adjustment सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट के जो वाउचर बना होता है उसके अंदर जाके रिकॉर्डेड होती रहती हैं, यानी कि हमने जो वाउचर क्लास बनाया ऑन दी सर्विस टैक्स बेसिस उसके अंदर ये सब रिकॉर्डेड होती है. Assess needs to produce the source document to claim the benefit of the credit adjustment. जो भी assessee है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक क्रेडिट एडजस्टमेंट बेनिफिट होना चाहिए जस्ट टू प्रोड्यूस दी सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट. एक सही सोर्स, एक डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, सारी की सारी जितनी भी सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट जितनी भी सेंड विद क्रेडिट में की होती हैं वो सब की जाए. दी सोर्स डॉक्यूमेंट डिटेल्स कैन बी viewed in ST3 report under the section 4B. जो भी डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी पूरी रिपोर्टिंग देते हैं वो डॉक्यूमेंट ST3 रिपोर्ट सेक्शन 4B के अंदर अवेलेबल है. The adjusted value US 363 or US 64A are displayed in section 4AIA3 and 4AIA4 respectively in ST3 report. यानी कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट वैल्यूज़ होती हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी वो भी इन दोनों सेक्शंस के अंदर बताया हुआ है ST3 रिपोर्ट के. Credit adjustment is divided into the service tax, education cess and the secondary and a higher education cess. अगर हमें किसी भी तरीके की क्रेडिट एडजस्टमेंट करनी है तो इन्हीं 3 टैक्सेस के बिहाफ पर हम ये एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि ऑन दैट क्रेडिट एडजस्टमेंट यू हैव टू पे द सर्विस टैक्स, यू हैव टू पे द एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशनल सेस. So now in this up to this we were getting the understanding about the SENVIT credit and how the SENVIT credit adjustment with or against the service tax is actually occurred. Service tax के against में जब हम SENVIT credit करते हैं तो उसकी overall transactions कैसे होती हैं यहाँ पर वो बताया जाएगा. अब हम लोग adjustments करने वाले हैं on the basis of payment of arrears, penalties and interest. When it comes to arrear वो होते थे it is what the due but not paid. That is जो भी amount है, जो भी transactions हैं वो due हैं but it is not paid. That comes into payment of arrears and penalties and interest. Now सबसे पहले creating a voucher for the arrears. The first thing is कि आपको arrears से regarding voucher पहले prepare करना होता है. आप जब पेमेंट टाइप बना रहे हो, पेमेंट टाइप में आपको सबसे पहले बताना होगा कि क्या पेमेंट टाइप है. सो येस इट इज़ व्हाट एरियर, ये हमारा एरियर है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदर नहीं है, पेनल्टीज नहीं है, इट इज़ एरियर. देन क्रेडिटिंग वाउचर्स फॉर द एरियर्स. क्रेडिटिंग वाउचर्स फॉर द एरियर इज़ व्हाट, अब यहाँ पर आप एक्चुअल में जनरल एंट्री करके बता रहे हो आपके एरियर की. दैट इज़ व्हाट एरियर टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ दैट. आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगेंस्ट अ बैंक नेम करोगे. So that comes into area to the State Bank of India, that is accepted as an yes. Now service tax statutory report. जब भी सर्विस टैक्स स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है तो वो कैसे बनाई जाती है. दिस इज़ व्हाट द कॉलम ऑफ द सर्विस टैक्स स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाके डिस्प्ले मेन्यूज़ में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सर्विस टैक्स रिपोर्ट्स होती हैं. सर्विस टैक्स रिपोर्ट जो है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है. सर्विस टैक्स पेबल, इनपुट क्रेडिट फॉर्म एंड ST रिपोर्ट. अब नाउ दिस इज़ व्हाट ऑल रिपोर्ट्स, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन सर्विस टैक्स से रिलेटेड हुई होती हैं एक कंपनी के अंदर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर होती हैं. इट्स अ काइंड ऑफ एन रिपोर्ट, इट इज़ काइंड ऑफ एन फॉर्म जो कि मेंटेन किया जाता है टैली के अंदर.
सबसे पहले दैट इज व्हाट इज सर्विस टैक्स पेबल। सर्विस टैक्स पेबल की विंडो कुछ इस तरीके से दिखती है। वी कैन सी दैट यस, हमने जितने भी सर्विस टैक्स चार्ज किए हैं अब तक, उनकी सारी की एंट्री यहाँ पर आ जाती है। वी कैन सी दैट डेट इज देयर, रेफरेंस नंबर इज देयर, पार्टीज नेम इज देयर, कैटेगरी नेम इज देयर, bill wise transactions are there, released values are there, or total payability is there. Now input credit form. Input credit form is basically what the adjustment of taxes, जब हमें किसी भी तरीके की adjustment हम लोगों ने की होती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी informations होती हैं वो input credit form के अंदर आती है। Input credit form report display the detail of service tax input credit available within दी कंपनी एज ऑन दी स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफिक डेट के अंदर क्या इनपुट आए सर्विस टैक्स के अंदर, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट क्रेडिट फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब होती है। द सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट सर्विस टैक्स लाइबिलिटी एज पर दी रिक्वायरमेंट। और सेम इसी तरीके से आउटपुट सर्विस टैक्स लाइबिलिटी पर भी ये काम करते हैं। Now this is what the window occurs of the input credit form। जब हम input credit form की बात करते हैं तो इस तरीके की window आती है। That is what looks more like the service tax payability, but yes there are certain differences, minor differences। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर date की entry करते हैं। Then we have an entry of a reference number, that is reference number of a purchase invoice। अगर आपकी किसी भी तरीके की purchase invoice है तो उससे related आप reference number देंगे। Then party name and service tax registration number of the service provider। जो भी service provider है उसका नाम, उसका service tax, उसका registration number, party का address, category name यानी कि आपने कौन सी सर्विस को परचेज किया, category name। Then bill value के अंदर assessable value यानी कि जो main amount था जिसके ऊपर transactions हुई, and उसके बाद service tax एंड सेस अमाउंट, और उसके अंदर हम लोग एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस सबको इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट असेसेबल अमाउंट, द टोटल अमाउंट। देन सर्विस टैक्स इज व्हाट द नेट असेसेबल वैल्यू ऑफ अ सर्विस परचेज। आपने जो भी सर्विस परचेज की उसकी नेट वैल्यू क्या है एज पर द परचेज इनवॉइस। देन सेस इज व्हाट एजुकेशनल सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, यानी कि दोनों की परसेंटेज को कंबाइनली करके यहाँ पर एड ऑन करना। देन अदर इज असेसेबल वैल्यू इन द रिलीज्ड वैल्यू, दैट इज व्हाट दिस कॉलम बेसिकली टॉक अबाउट द असेसेबल वैल्यू, सर्विस टैक्स एंड टोटल सेस। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द पेमेंट मेड अगेंस्ट द इनवॉइस वैल्यू, यानी कि पेमेंट आपकी जब भी वैल्यू के अगेंस्ट में बनती है तो उसे हम सर्विस टैक्स बोला जाता है। इसके अंदर यस रियलाइज्ड असेसेबल वैल्यू बेस्ड ऑन द पेमेंट मेड, देन रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स क्रेडिट बेस्ड ऑन द पेमेंट मेड, रियलाइज्ड सेस ऑन द सर्विस टैक्स credited based on the payment made, and then finally the total available service tax credit. Now what is ST3 report? जब हम लोग सर्विस टैक्स रिपोर्ट की बात करते हैं तो जो उसका थर्ड कॉलम आता है दैट इज व्हाट द ST3 रिपोर्ट। ST3 report is basically statutory report. This display, or we can say that this report display the ST3 form in the government prescribed format that is used for file half or yearly service tax return of the commissionate of the service tax। जो commissionate of service tax होता है, आप जब उसे पे करना चाहते हो, it could be half yearly और yearly basis, उसे ST form कहा जाता है। Now this is what the printing type। जब आपको ST फॉर्म की प्रिंटिंग चाहिए होती है तो ये इस तरीके की विंडो खुल के आती है। ना जब ST फॉर्म की हम बात करते हैं तो ST फॉर्म की प्रिंटिंग होती कैसी है, दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट लुक ऑफ द ST फॉर्म, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अबाउट द SSC, STC नंबर, परमानेंट कोड, कमिश्नरेट असेट्स। दिस इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो क्या कैटेगरीज और किस तरीके का फंक्शनैलिटीज़ हैं, यहाँ पे सारा हमने एंट्रीज दी हुई है, 3 साल की एंट्रीज और क्या चार्जेस हैं उनकी। दैट इज़ व्हाट अगेन कम्स द सेम थिंग।
So this is what the last printing page of ST3 report. Now then finally this is what you have to do it yourself, certain thing, that is सबसे पहले तो statutory tax report क्या होती है आपको ये बताना है. दूसरा how it is prepared, and we all know that statutory report maintenance is one of the mandatory part, क्योंकि आप जब किसी भी तरीके की सर्विस टैक्स चार्ज करते हो या किसी तरीके का सेस चार्ज करते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना. एंड हाउ द सैंडविच क्रेडिट चार्ज अगेंस्ट द सर्विस टैक्स, आपको ये बताना है कि किस तरीके से वो अगेंस्ट द सर्विस चार्ज किया जाता है. सो येस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे सेशन. वी आर वाइंडिंग अप. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.